Hello and welcome student. Today I am very excited because I am going to discuss with you part 2 of arithmetic progression of class 10th, and in this video I'll discuss with you very important questions of PYQs which will help you for your half yearly exam or for upcoming board exam. So make sure that you have a pen and notebook where you have written all the important points, all the important formulas, and you have also revised all the important concepts, formulas which I have discussed with you in the last lecture, right? So without any delay, let's get started. First, I just want to discuss with you this. Quality is more important than quantity, and you all know that आपको पता है कि क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. क्वांटिटी से कितने भी क्वेश्चंस कर लो, अगर आपने क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं किए तो फिर कोई मतलब नहीं है. एग्जाम में पूछने ही नहीं वाले आपके टीचर्स, या फिर जो भी बोर्ड एग्जाम की बात करूं मैं, ठीक है. सो क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हम क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं. चलो, so I'm going to start with the first question. The first question is, how many terms are there in AP whose first and fifth term minus 14 and 2 respectively, and the last term is 62. चलो, यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, मुझे फर्स्ट टर्म गिवन है -14 एंड हमें दिया हुआ है A5 इज इक्वल्स टू व्हाट 2. वी हैव टू फाइंड n बिकॉज आपने देखा यहाँ पर हाउ मेनी टर्म्स, एंड देन इट इज गिवन दैट an इज इक्वल्स टू, और यू कैन राइट बिकॉज लास्ट टर्म है 62. अब मैम हमें सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करने के लिए वी विल यूज द फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. बट बिफोर यूजिंग दिस फॉर्मूला वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d. बट हाउ? सो एक चीज देखो बेटा, आपको ये AD की A5 की वैल्यू दे रखी है ना, वी विल यूज दिस. वी कैन राइट A5 a plus 4d, मैंने आपको बताया भी था. एंड नाउ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ a which is -14 and I'll write here plus 4d is equals to 2, and 4d is equals to, ये हो जाएगा 2 plus 14, and 4d is equals to 16, and d is equals to what? d is equals to 4. Now when you will find the जब आप ये वैल्यू फाइंड आउट करोगे यहाँ पर n की, तो आप क्या करोगे, आप an की जगह पे 62 पुट कर रहे हो, a की जगह पे -14 प्लस n यू हैव टू फाइंड, एंड d की जगह पे आपने 4 पुट कर दिया. 62 plus 14 is equals to n minus 1, 4. And then this is 76 divided with 4 is equals to n minus 1. When you will cancel out this is 19. So n is equals to what? n is equals to 19 plus 1, which is equals to 20. So your answer is 20. So how many terms are there in AP? 20 terms are in AP. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. इफ mth term of an AP is 1 upon n and nth term of an AP is 1 upon m, then find the sum of mnth term. अब बेटा इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से आप समझना. आपको क्या दिया हुआ है, टर्म की वैल्यू दी हुई है, mth टर्म की वैल्यू दी हुई है 1 अपॉन n और nth टर्म की वैल्यू 1 अपॉन n, एंड आपसे पूछा है सम ऑफ इस mnth टर्म. ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को जब नंबर्स नहीं गिवन होते हैं, बट कोई बात नहीं, आपको पेशेंसली सॉल्व करना है. स्ट्रैटेजी क्या होगी वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ. कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है, यू विल स्टार्ट लाइक दिस. सो क्या करना है, आपको सबसे पहले am की वैल्यू लिख लेनी है. am is equals to 1 upon n आपको गिवन है, एंड सेकेंड यू विल राइट an is equals to 1 upon m. एंड अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यू विल राइट a प्लस, जैसे n minus 1 लिखते हो वैसे m minus 1 इंटू d करोगे, क्योंकि n को m ने रिप्लेस कर दिया, एंड यू विल कंसीडर दिस इज इक्वेशन 1. And for the second, I'll write a plus n minus 1 into d, and I'll write here 1 upon m. And this is your second equation. By using elimination method, I'll eliminate the value of a, and d दोनों में common है. I'll take common m minus 1 minus n plus 1, and this is 1 upon n minus 1 upon m. And you can see 1 and 1 cancel, d bracket में m minus n, और ये हो जाएगा आपके पास m minus n upon mn. You will cancel out both, so you have what? d is equals to 1 upon mn. बेटे d की वैल्यू आ गई आपके पास. नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बाय पुटिंग
the value of d in any equation. So I'll use the first equation, which is a plus m minus 1 into d is equals to 1 upon n. And when I put the value of d here, I'll get a plus m upon mn minus 1 upon mn is equals to 1 upon n. I'll cancel out m. So we have a plus 1 upon n minus 1 upon mn is equals to 1 upon n. You will cancel out 1 upon n and you will get a is equals to 1 upon mn. a की वैल्यू भी 1 upon mn है, ठीक है, ये कैलकुलेट किया. अब आपको क्या करना है बेटा, नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एस एम टर्म्स. तो बेटा आप मुझे एक बात बताइए, हमें फॉर्मूला क्या पता होता है, सम का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 ब्रैकेट में व्हाट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. अब n की प्लेस किसने ले ली, अभी यहाँ पर mn ने, तो हमने इसके जगह पे जहां भी n लिखा था वहां पे हमने mn पुट कर दिया. क्या हो जाएगा, mn अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू d. Now I'll substitute the value of a and d, then 2 into 1 upon mn plus mn minus 1 and 1 upon mn. What I'll do next? I'll write here mn upon 2 and this is 2 upon mn plus mn upon mn minus 1 upon mn, and you can see this will cancel, you have 1. When you will subtract these two, you'll get mn upon 2 and you have 1 upon mn plus 1. Now when you will take LCM, you have, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे अगर न्यूमिनेटर 1 हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस mn अपॉन 2. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ mnth टर्म. ये आपके पास आ गया, ठीक है. अगर सिर्फ mnth टर्म की वैल्यू पूछते, सिर्फ टर्म की वैल्यू पूछते, देन हम an वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, बस बिकॉज आपको सम की वैल्यू पूछी है देन वी विल डू दिस, राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. डिवाइड 56 इन 4 पार्ट्स. पता है ना कैसे करना है, हमने डिस्कस करा है 4 पार्ट्स की कंडीशन क्या होती है. देखो बेटा 4 पार्ट्स की आपको बोला इन्होंने 56 को आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है. 56 को आपको क्या करना है, कुछ 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है. एंड पार्ट्स ये जो है एपी में बिलोंग करते हैं, तो हमें पता है कि a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड हम कंसीडर करेंगे a प्लस 3d. सो अब आपको पता है अगर ये पार्ट ऑफ दिस है तो अगर मैं इनको ऐड करूंगी तो इनका सम कितना हो जाएगा, a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d एंड प्लस a प्लस 3d. दिस इज इक्वल्स टू 56. नाउ d वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज अपोजिट साइन के. 4a इज इक्वल्स टू 56 और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, a इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया 56 डिवाइडेड विथ 4. 4 1 जा 4, 4 4 जा 16. a इज इक्वल्स टू आपको कितना आ गया, यहाँ पे 14 इज द वैल्यू. सो a तो आपको मिल गया, बट व्हाट अबाउट अदर लाइक d, क्योंकि जब आपके पास d भी आ जाएगा देन यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर एंड यू कैन फाइंड कि वो 4 टर्म कौन से. सो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे हम डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे हम अगर डिस्कस कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखो बेटा, आपको क्या पता है हमने फाइंड आउट कर लिया. अब उन्होंने एक कंडीशन, लिसन, पहले कंडीशन तो देखो, उन्होंने बोला है 56 डिवाइडेड 4 पार्ट्स इन एपी सच दैट ratio of product of extreme. What is the meaning of extreme, मैम? बेटा extreme का मतलब होता है the product of ये दोनों पार्ट. What is the meaning of mean? ये दोनों पार्ट, ठीक है. तो extreme का मतलब बाहर वाले और means का मतलब ये, और इनका रेशियो क्या दिया हुआ है 5/6. तो हमने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने यहाँ पर लिख लिया a माइनस 3d and a plus 3d upon a plus 3d मतलब a plus d and a minus d which is equals to 5/6. अब इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो तो ये 9d स्क्वायर हो गया एंड ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/6.
आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो ये आ जाएगा आपके पास 6a² माइनस 54d² इज इक्वल्स टू 5a², और ये हो जाएगा आपके पास कितना, माइनस 5t²। ठीक है, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 6a² माइनस 5a² इज इक्वल्स टू माइनस 5t² प्लस 54d²। When you will subtract this, you have a² which is equals to what, 49d²। 49d²। अब आप यहाँ पर बात करते हैं तो a² will be 196, 190, और आप ऐसे लिख सकते हो, देखो इस a² कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा आपके पास कितना, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर आप लिखोगे, और 49 इधर आएगा। चलो मैं स्टेप्स डायरेक्टली बिल्कुल अच्छे से एक एक स्टेप मेंशन करती हूँ। देखो ये 196 हुआ और ये 49 आएगा, ये d² हुआ। अब आप मुझे एक बात बताइए जल्दी से, 196 क्या होता है, 14² होता है, तो ये 14/7 इज इक्वल्स टू d आ गया ना, और फिर d की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, d इज इक्वल्स टू व्हाट, d इज इक्वल्स टू 2, d इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, d इज इक्वल्स टू आपके पास 2 आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें वो टर्म फाइंड आउट करने थे, हमें वो टर्म फाइंड आउट करने थे। सो आई विल राइट हियर ऑल द टर्म जो हमारे थे, क्या थे हमारे टर्म, a माइनस 3d। सो a कितना था, 14 माइनस 3 इंटू 6, तो ये हो गया हमारे पास 14 माइनस, हमारे पास नहीं ये 2 है, d हमारे पास क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 6, और ये हो गया हमारे पास 8 आंसर आ गया, a माइनस 3d। इसके बाद हम बात करते हैं a माइनस टी की बात कर लेते हैं। सो a माइनस टी पहले फाइंड आउट कर लो, तो a माइनस टी क्या था, 14 माइनस 2 विच इज 12। फिर इसके बाद बात करते हैं a प्लस d की बात करते हैं, तो दिस इज व्हाट, 14 प्लस 2 विच इज व्हाट 16, एंड फिर a प्लस 3d की बात करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 14 प्लस 6 विच इज 20। अब आप यहाँ पर देख रहे हो 8, 12, 16 और 20 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आपका 4 आ रहा है, जबकि आपके पास d जो फाइंड आउट हुआ वो 2 था बेटा। तो अब यहाँ से आपको क्या क्लियरिटी है बेटा, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था ना कि जब आपको इवन नंबर ऑफ टर्म कंसीडर करने होंगे देन उनका जो कॉमन, ये तो हमारा कैलकुलेट करने पे है, पर रियल एपी के जो टर्म है उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा, इसको मैं कैपिटल D से लिख लेती हूँ। सो दिस d इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ d, 2d होगा, तभी देख रहे हो आपके पास d आया 2 था, बट आपके पास 2d का डिफरेंस है, इट मींस 4 का डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर है ना अच्छे से, कैसे क्या करा हमने, सबसे पहले 4 टर्म कंसीडर करे, सम से एक कोई वैल्यू फाइंड आउट कर ली, फिर जो गिवन कंडीशन थी उसको अप्लाई करके एंड हमने वैल्यूज फाइंड आउट करी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर 1 to 100। अब 1 to 100 के लिए हमने सबसे पहले एपी कर ली 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टिल 100। So what you know the first term of AP is 1 and you know the difference is 1 and you know the AN is also 100 जो given है आपको, क्योंकि आपको ये दिया है ना 100 टर्म का, और हमें सम फाइंड आउट करना है। तो फॉर द सम आई विल राइट हियर SN is equals to n/2 ब्रैकेट में 2a। अच्छा देखो 2a वाला फॉर्मूला यूज नहीं करते, हम a प्लस an वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, बिकॉज हमें लास्ट टर्म पता हुआ है। तो S100 हमें बताना है इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100/2 बेटा, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 1 प्लस 100 एंड दिस कैंसिल, दिस इज 50, और ये हो जाएगा S100 की वैल्यू आ गई आपके पास 50 मल्टीप्लाई विद 101 एंड S100 यानी सम ऑफ 100 टर्म क्या आ जाएगा आपके पास 5050, एंड दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपल, बट बोर्ड में आ रखा है इसलिए हमने प्रैक्टिस करी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम, यानी Sn की फॉर्म फिर से दे रखी है हमें 1/2, ये ब्रैकेट में हमें गिवन है 3n² प्लस 7n। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, देखो हमने आपको बताया था और आपको सबसे पहले nth टर्म और 20th टर्म फाइंड आउट करना है। वी हैव डिस्कस ना कि पहले हम a d फाइंड आउट करेंगे एंड देन फिर हम टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर हम वैल्यू पुट कर देंगे।
सबसे पहले हम S1 पुट करेंगे, इट मीन्स n इज इक्वल टू, जब हम 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, क्या हो जाएगा 1/2, दिस इज व्हाट 3 1 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1, एंड ये हो जाएगा आपके पास बेटा 1/2 ब्रैकेट में 3 प्लस 7, और ये आ जाएगा आपके पास कितना 1/2, एंड दिस इज 10. So you have S1 which is also equals to A and this will be 5. तो आपके पास A क्या आ गया, या आप इसको A1 अभी लिख लो, A1 आपके पास क्या आ गया 5. अब बात करते हैं हम S2 की. जब हम यहाँ पर पुट करेंगे क्या n is equals to 2, और ये हमारे पास आ जाएगा S2 की वैल्यू. So S2 is equals to what? S2 is equals to what? 1/2 ब्रैकेट में 3 2 स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट में 2, and you have 1/2, this is 3 multiply with 4 plus 14, and ये हो जाएगा आपके पास 1/2 ब्रैकेट में आपके पास कितना आ गया 12 plus 14, and 1/2 is 26 which is equals to 13. तो अब आपके पास क्या आ गया बेटा यहाँ पर, अब आपके पास S2 की वैल्यू आ गई. सो यू कांट से, अभी आप ये नहीं बोलोगे क्योंकि आपको क्या पता है, आपको यहाँ पर क्या क्लियर है, आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि S1 इज इक्वल्स टू A1 तो होता है, जो कि आपने 5 फाइंड आउट कर लिया, बट बेटा S2 इज नॉट इक्वल्स टू A2, जबकि क्या होता है S2 इज द सम ऑफ A1 प्लस A2. तो अब आपने क्या करा, देखो आपके पास S2 कितना आया, आपके पास A2 ये 13 आया, इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2, एंड यू हैव द वैल्यू ऑफ A1, इधर माइनस करोगे तो 8 क्या आ गई, A2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, A2 की वैल्यू आ गई आपकी 8. क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर 5 पुट करा. जब आप इसकी जगह 5 पुट करेंगे और 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मैं लिख देती हूँ इधर आगे, A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 5, ठीक है, और 8 हो गया. अब बेटा 8 आ गया आपके पास, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड D. D क्या होता है A2 माइनस A1, इट मीन्स आप क्या करोगे 8 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 3. अब D3 आ गया आपके पास, ये भी और भी अच्छी बात. सो हमें फटाफट से फाइंड आउट क्या करना है nth टर्म. सो an इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, an इज इक्वल्स टू हम यूज करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का कॉन्सेप्ट. सो यहाँ पर हम a की जगह वैल्यू पुट करेंगे. a हमारा क्या था, यहाँ पर हमारा a था 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, और अब आप देखो यहाँ पर बेटा, अब आप यहाँ पर देखें क्या आ जाएगा आपके पास, an इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3n माइनस 3, ठीक है. तो ये आपके पास क्या आ गया, व्हाट यू हैव, an इज इक्वल्स टू आपके पास है 3n प्लस 2, 3n प्लस 2 की वैल्यू है आपके पास यहाँ पर, ठीक है. अब हमें करना क्या है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है शायद 16th टर्म की वैल्यू, 20th टर्म की वैल्यू हमें बतानी थी. सो 20th टर्म की वैल्यू हम कैसे डिस्कस करेंगे, 20th टर्म की वैल्यू के लिए हम करेंगे, हमारे पास यहाँ पर an की फॉर्म आ गई, an इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया है क्या 3n माइनस 3n प्लस 2, 3n प्लस 2. सो an इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3, एंड दिस इज 20 प्लस 2 हमारे पास आ गया. सो an इज इक्वल्स टू हमारे पास 60 प्लस 2, एंड an इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 62, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है. सो दिस इज योर आंसर, करेक्ट. हमने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पर वैल्यूज पुट करी. एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन को. Sn की वैल्यू आपको दे रखी थी यहाँ पर 1/2 3n स्क्वायर प्लस 7n, आपने 1 पुट करा. इन द प्लेस ऑफ दिस इज 3 प्लस 7 1/2 a1, a आपका क्या आ गया, a आपके पास 5 आ गया, एंड देन फॉर S2 आपने S2 पुट करा, इसके प्लेस पे 3 इंटू 4 हुआ प्लस 14 हुआ, एंड देन फिर आपने ऐड करा, इट इज इक्वल्स टू 26, और फिर जब आपके पास 26 आया डिवाइड बाय दिस किया तो 13, आप यहाँ पर देखो 13 हो गया, एंड देन आपको पता है कि S2 माइनस S1 क्या होता है, ये आपके पास 13 A2 जो है वो आपके पास 5 आ गया, एंड देन D आपने फाइंड आउट कर लिया A2 माइनस A1 विच इज 3, और फिर आपने nth टर्म के फॉर्मूले में पुट करा, बिकॉज आपका a क्या था, a आपका 5 था, तो आपने वैल्यू पुट कर दी, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3 पुट करी, एंड an इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया 3n
+2, 3n +2, बिकॉज आपके पास ये 3n और ये -3 हो जाएगा तो आपके पास आ गया +2। एंड फिर उसके बाद आपने क्या करा, आपको an इज इक्वल्स टू, बिकॉज आपको 20th टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, आप यहाँ पे 20 लिख दो, n की वैल्यू नहीं है, दिस इज द वैल्यू ऑफ a, 20th टर्म की वैल्यू है, सो आपने यहाँ पर फाइंड आउट करा एंड द आंसर इज, n की जगह पे 20 पुट करा, द आंसर इज आपके पास कितना आ गया 62। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, how many terms of AP 65, 60, 55 be taken so that their sum is 0? आपको बोला है एसएन हमें क्या प्रूफ करना है, 0, कि भाई कितने नंबर्स को हम ऐड करें कि सम 0 हो जाए। यहाँ पर अब सम 0 हो जाए तो हमें एपी क्या गिवन है, अब देखो यहाँ पर एपी आप देख पा रहे हो बेटा, यहाँ पर ए क्या गिवन है, ए इज इक्वल्स टू हमें 65 दिया हुआ है और हमारे पास डी हमें -5 दिख रहा है एंड आपको बताना है कि कितने, यानी आपको एन फाइंड आउट करना है। सो ठीक है, हम एस एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, विच इज n/2, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर एस एन की जगह 0 पुट करेंगे, हो जाएगा n/2, ब्रैकेट में 2 इंटू आपके पास आ गया 65 प्लस ये हो गया आपके पास n-1 एंड दिस इज व्हाट -5। एंड अब यहाँ पर देखो आप इसको लिख सकते हो, कितना हो जाएगा 130 minus 5n plus 5 equals to 0 and this is what 135 is equals to 5n and n is equals to कितना हो जाएगा आपका 27। 27 is the answer, means 27 terms आप जब ऐड करोगे इस एपी के तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0, सम मीन्स 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पे द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 63। बेटा कोई एपी गिवन है जिसके पहले 7 टर्म्स को जब आप ऐड कर रहे हो तो 63 आ रहा है, फिर नेक्स्ट कोई 7 टर्म्स आप ऐड कर रहे हो उनका आंसर आ रहा है कितना 161, और आपको बताना है कि इसी एपी का 28th टर्म क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, एक बार अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बेटा हमें करना क्या है, हमें एपी का पहले S7 गिवन है, कितना है हमें 63 गिवन है, तो मैंने यहाँ पर एपी बना 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू डी लिख लिया एंड देन आई हैव रिटन 63। 7 9 कितना हुआ 2a प्लस 60 इज इक्वल्स टू 18 एंड a प्लस 3d इज इक्वल्स टू आ गया 9। यू कैन राइट दिस इज इक्वेशन 1 एंड फॉर द सेकेंड इक्वेशन, अब यहाँ पर पता है क्या करना है, यहाँ पर आपको दे रखा है नेक्स्ट 7 टर्म, तो बेटा टोटल तो 14 टर्म है ना, 14 टर्म में गिवन 7 टर्म माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास अगर आप पहले पूरे 14 टर्म के सम से आप जो गिवन 7 टर्म का सम है वो माइनस करोगे तो आपको रिमेनिंग जो नेक्स्ट 7 टर्म्स है उनका सम आ जाएगा। हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। अब S14 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 161 प्लस S7 यानी 63। क्लियर है आपको। अब यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी 14/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 2 एंड दिस इज 2 2 4। सो नाउ ये कैंसिल 7, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2a प्लस 13d इज इक्वल्स टू व्हाट, देखो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा बेटा, मैं इसको कैंसिल कर दूं, देखो चेंज हो जाओ भाई। सो ये 7 से कैंसिल हुआ, 7 3 जा आपका कितना हुआ 21 और 7 2 जा ये, तो अब आपने यहाँ पर क्या लिख लिया, आपके पास आ गया 32, आपके पास यहाँ पर आ गया 32 एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास जो पहली इक्वेशन है वो यहाँ पर लिख लो, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो देखो आपके पास क्या आ जाता है, इक्वेशन 1 को जब आपने मल्टीप्लाई किया, मैं यहीं पे बता देती हूँ, ठीक है, ये आपने मल्टीप्लाई किया और आपके पास है यहाँ पर 2a प्लस 60, मतलब वही पहली वाली इक्वेशन इज इक्वल्स टू 18 और आपने फिर लिख लिया 2a प्लस और ये हमारे पास है 13d इज इक्वल्स टू कितना है
32 एंड व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट दिस टू इक्वेशन, माइनस कर दो, माइनस माइनस ये कैंसिल, और आपके पास यहाँ पर कितना हो गया, देखो ये आ जाएगा आपके पास -7d, -7d इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा -14 एंड d इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया 2। भाई d आपके पास 2 आ गया तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 9 में पुट करते हैं हम, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 9 में पुट करते हैं, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 9 में पुट करते हैं, तो a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 9 एंड a इज इक्वल्स टू 9 माइनस 6, a इज इक्वल्स टू 3। सो a 3 आ गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन में गिवन है हमें 28th टर्म बताना है बेटा इस AP का। तो अब इस AP का जब 28th टर्म बताना है तो हमें A28 फाइंड आउट करना है। तो A28 इज नथिंग बट A प्लस 27D। A प्लस 27 मतलब 3 प्लस 27 इंटू 2। अब ये कितना आ गया, 3 प्लस बेटा ये आ गया आपके पास कितना 54 एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 57। सो ये क्या आ गया, A28 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, A28 आपके पास 57 आ गया। दिस इज योर आंसर। क्लियर है, अच्छे से क्लियर है, बहुत अच्छी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम फिर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है द रेशियो ऑफ द 11th टर्म एंड 18th टर्म ऑफ AP। 11th टर्म और 18th टर्म ऑफ AP, A11 और 18th टर्म ऑफ AP का रेशियो दिया हुआ है हमें कितना 2:3 बेटा। अब उन्होंने बोला कि हमें फिर फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म एंड 21st टर्म एंड ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म। अब बेटा होता क्या है, देखो आपको ये कंडीशन दे दी, इससे हमें कुछ रिलेशन आएगा क्योंकि एक ही इक्वेशन है और हमारे पास अननोन वेरिएबल कितने A और D, और आपको पता होता है 2 वेरिएबल्स के लिए 2 इक्वेशन एटलीस्ट चाहिए है हमें। तो अब एक इक्वेशन ऑब्वियस सी बात है A और D में रिलेशन आएगा, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। हमने इसकी फॉर्म लिख ली A प्लस 10D और बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 17D इज इक्वल्स टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो जल्दी से, ये हो जाएगा 3A प्लस 30D एंड दिस इज इक्वल्स टू 2A प्लस 34D। आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो A इज इक्वल्स टू 4D आ गया आपके पास। नाउ दिस इज द रिलेशन विच यू कैन यूज to find the ratio of the term and sum का ratio भी। So for the ratio of A5 upon A21, I'll write A plus 4D and again I'll write A plus 20D and when I substitute the value of this A की मतलब तो ये 4D होगा एंड ये हो जाएगा हमारे पास 4D plus 20D। बेटा this is what 8D अपॉन कितना हो जाएगा 24D और रेशियो क्या आ गया आपके पास 1/3 या 1:3। क्लियर, सॉरी ये क्लियर है आपको। अब हमें बात करनी है कि हमें फाइंड आउट करना है नेक्स्ट सम ऑफ 5 और सम ऑफ S21। देखते हैं भाई 5/2 ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2A प्लस n माइनस यानी 5 माइनस 1 इंटू D एंड आई राइट अगेन 21/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 21 माइनस 1 इंटू D। क्या आ जाएगा, देखो 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, 5/21 एंड आई राइट हियर व्हाट 2 इंटू 4A प्लस 4D एंड मैं यहाँ पे लिखूंगी 2 इंटू 4A प्लस 20D। अब बेटा यहाँ पर देखिए आप 5/21 हो गया एंड ये कितना हो जाएगा आपके पास 8A प्लस 4D और ये आपके पास आ गया कितना 8A प्लस 20D and now you can write 5/21 into this is what, this is 12D upon 28D, D और D cancel, 3 4s are 12, 3 7s are 21, 4 कितना आ गया आपके पास 7। तो ये हमारे पास क्या गया आंसर, हमारे पास आंसर आ गया 5/49। सो 5:49 इज द रेशियो ऑफ सम का जो है और 1/3 था रेशियो ऑफ nth टर्म का, जो भी मतलब टर्म की वैल्यू थी हमारे पास 5 और 21। अब बेटा देखो
नेक्स्ट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एज अ केस स्टडी भी आ जाता है कभी कभी, तो देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में देखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको इसको समझना है और फिर इसको कैसे मैथमेटिकल वे में हम सॉल्व करेंगे। एक नॉर्मल ऐसे सिचुएशन को आप एज्यूम करो, बोले थीफ रन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट। मुझे एज्यूम करो मैं एज अ थीफ ऐसे दौड़ रही हूँ, मेरी स्पीड क्या है 100 मीटर पर मिनट। आफ्टर 1 मिनट, भाई मैं और पुलिस साथ में, मैं पहले दौड़ी, फिर 1 मिनट के बाद पुलिस भी मुझे पकड़ने के लिए। आफ्टर after a minute, a policeman run after the thief to catch him. He goes with a uniform speed 100 meter per minute in the first minute and increases his speed by 10 meter per minute every succeeding minute. After how many minutes the policeman will catch the thief? बेटा भाई मैं पहले दौड़ गई, अभी 1 मिनट के बाद आ रहा है, तो जो थीफ होगा, यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग है, जो थीफ होगा वो 1 मिनट ज्यादा दौड़ा होगा, 1 मिनट ज्यादा दौड़ा होगा, क्योंकि पहुंचे तो दोनों एक प्लेस पे हो गए ना जहां पे पुलिस ने उसको कैच कर लिया। सपोज करो ऐसे 2 पर्सन है, कुछ भी समझ लेना ज्यादा, ये भाई थीफ है और ये पुलिसमैन है, ठीक है, पुलिसमैन है, दोनों दौड़ रहे हैं, दोनों दौड़ते 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 यहाँ पहुंच गए। तो अब भाई जो थीफ था ना, पुलिसमैन ने पकड़ तो लिया इनको, बट क्योंकि ये अंकल जो थे ये 1 मिनट पहले रन करना शुरू कर रहे थे, तो इनका टाइम अगर मैं, इसका टाइम अगर क्या ले लेती हूँ, इसका टाइम अगर मैं n ले लूँ, क्योंकि एपी का क्वेश्चन है इसलिए जो भी टाइम होता है या टर्म होते हैं तो n लेते हैं, तो टाइम को भी अभी n के टर्म में ले लेते हैं, ये n हो गया। तो ये n 1 मिनट कम रन, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 मिनट ज्यादा, यानी n+1 आप लिख लो, ठीक है, या फिर आप इसको n ले रहे हो तो इसको कम कर सकते हो कैसे भी। तो थीफ ये जो है T फॉर थीफ, P फॉर पुलिस। अब इस सिचुएशन को हमें मैथमेटिकल वे में, बट एक चीज यहाँ पे कांस्टेंट है, क्या, डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस एंड थीफ, डी सेम। तो क्यों ना हम इसको डी के फॉर्म में इक्वेशन फॉर्म कर ले। कैसे करेंगे, देखो आपको फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, या टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू आपको पता है स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है ना। तो हमें क्या क्या गिवन है, द स्पीड ऑफ थीफ कितना गिवन है हमें 100 मीटर पर मिनट। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपल वर्ड में लिखूं, डिस्टेंस कवर्ड बाय, डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ आपको कितना दे रखा है यहाँ पे 100 मीटर पर मिनट स्पीड है। तो हमने फॉर्मूला यूज कर लिया बेटा, कौन सा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस की आ जाएगी, यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमें स्पीड दे रखी है 100 मीटर पर मिनट एंड इनटू हम क्या करेंगे, हमें टाइम हमने लेट करा है n+1, तो ये आ गया डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ, ये 100 इंटू n+1 मिनट। अब इसके बाद क्या हुआ बेटा, देखो जो ये पुलिसमैन है ना, इनकी एक एपी बन रही है, डिस्टेंस कवर्ड बाय, टोटल डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय, अगर मैं पुलिसमैन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं पुलिसमैन की बात करूं तो पुलिसमैन जो है ना वो सर कांस्टेंट स्पीड में नहीं रन कर रहा है, वो हर 10 मिनट में, हर 1 मिनट में अपनी स्पीड 10 मीटर पर मिनट किसे इंक्रीज कर। तो भाई पहले मिनट में उन्होंने कितनी स्पीड रही होगी उनको 100, दूसरे में 110, फिर 120 एंड सो ऑन, जब तक उन्होंने कैच नहीं कर लिया, यानी n मिनट्स तक उनकी स्पीड ऐसे इंक्रीज हो रही है। तो अब बेटा ये हमारे लिए क्या है, दिस इज हमारे लिए एपी फाइंड आउट हो रहे हैं, और हम अगर सम फाइंड आउट करते हैं तो हमें इस एपी का सम फाइंड आउट करना होगा, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिसमैन, ठीक है, पुलिसमैन। अब देखो यहाँ पे टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, आप बोलोगे मैम ये तो स्पीड है, टाइम कहाँ पे, बेटा यहाँ पे n टाइम है, ये 2 टाइम है, ये 3 मिनट्स में है, तो ये टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, डिस्टेंस इनटू टाइम, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, तो इसका सम निकालेंगे व्हिच इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देखते हैं हम एपी अप्लाई करेंगे। तो एपी में अगर मैं ए की वैल्यू बोलूँ तो 100 आपको दे रखा है, डी आपको 10 दिया हुआ है, और आपको n की वैल्यू जो टाइम आपको दिया हुआ है,
जो आपको टाइम यानी जो आप n के प्लेस पे पुट करोगे वो n मिनट आप पुट करोगे, क्योंकि n मिनट्स का ही सम निकालना है। तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2, ब्रैकेट में आप लिखोगे 2 इंटू 100 प्लस n-1 इंटू ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये इंटू आपके पास d आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करो तो n/2 बेटा ब्रैकेट में आ जाएगा 200 प्लस 10 माइनस 10n माइनस 10, ठीक है। अब आप यहाँ पर सॉल्व करो तो n/2 ब्रैकेट में आ जाएगा 190 प्लस 10n, ठीक है। अब आप अगर चाहो तो आप 2 से इसको डिवाइड कर सकते हो, वरना आप थोड़ी देर के लिए ये Sn लिख लेते हैं और मैं दोनों Sn को, दोनों डिस्टेंस को इक्वेट कर देती हूँ। दोनों इक्वेशन को अगर मैं इक्वेट करूंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आया n/2 ब्रैकेट में मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिसमैन एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ को इक्वेट करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास कितना, ये हमारे पास था 190 प्लस 10n, 190 प्लस 10n which is equals to 100 into n plus 1, ठीक है, 100 into n plus 1। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 190n प्लस 10n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200n, ये मैंने 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया एंड 200। अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, हो जाएगा, लिखते हैं 10n स्क्वायर, इसको इधर लेके आते हैं 190n माइनस 200n प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास कितना हो जाएगा 200 हुआ, और हम माइनस 200 हम लिखेंगे माइनस 200 एन इक्वल्स टू 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, 10n स्क्वायर ये हो गया आपके पास माइनस 10n, और फिर उसके बाद आपके पास आ गया माइनस 200 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर तुम कॉमन कर सकते हो, 10 बिल्कुल कॉमन कर सकते हो, n स्क्वायर माइनस n और फिर ये हो जाएगा माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो आपको सब्ट्रैक्ट करके 1 लाना है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि आपको 20 के फैक्टर्स पता है क्या होते हैं यहाँ पर 5 और 4, 5 इंटू 4 20 एंड 5 माइनस 4 10, तो माइनस 5n प्लस 4n करेंगे, माइनस 20 इक्वल्स टू 0, तो n ब्रैकेट में n माइनस 5 प्लस 4 n माइनस 5 इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ पर आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे, यू विल गेट n माइनस 5 एक 1 ब्रैकेट में और n प्लस 4 अनदर ब्रैकेट में, और n इज इक्वल्स टू 5 मिनट आ गया, और n इज इक्वल्स टू आपके पास 4 मिनट, माइनस 4 मिनट आया, n इज इक्वल्स टू माइनस 4 मिनट आया, एंड यू नो टाइम कांट बी नेगेटिव, सो द आंसर इज n इज इक्वल्स टू 5 मिनट। और n क्या था, हमने लेट करा था पुलिस का टाइम, तो पुलिस कितने मिनट के बाद थीफ को कैच कर लेगी, 5 मिनट के बाद। समझ आ गया होगा आपको। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड consecutively from 1 to 49, show that there is a value of x such that the sum of number of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the number of the houses following it, मतलब उसके आगे find the value of x। अब बेटा देखो कंडीशन ऐसे है कि हमारे पास ये कुछ घर है, हमारे पास ये इस तरीके से घर है भाई, और ये कुछ ऐसे हमारे पास घर है, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे बीच में एक घर है, और ये कितने हैं, ये कुछ 49 है, और ये कुछ 49 घर है। क्या करा हमने, सबको नंबर मार्क कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4, और ये कोई x है, x नाम का घर है। फिर हमने लास्ट में करा तो ये हमारे पास आ गया 48, और फिर ये 49 हो गया हमारे पास, क्योंकि हमारे पास कितने नंबर्स हैं 1 से लेके 49 तक। अब बेटा देखो इस घर से पहले वाले घर का नंबर क्या होगा, अब हमें x तो नहीं पता, तो इससे पहले वाला ऑब्वियस सी बात है x से एक कम होगा, x माइनस 1 होगा, और इसके बाद वाले जो घर का नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, इसके बाद वाले घर का नंबर x प्लस 1 होगा, क्योंकि ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से होंगे। हमें ये बताना है, कंडीशन ये दे रखी कि इससे पहले वाले जो सारे नंबर्स का जो फर्स्ट जो Sn है और जो इसके बाद के सारे घर का जो सेकेंड Sn है ना, वो इक्वल है।
तो अब हमें कुछ इस सिचुएशन को मैथमेटिकल वे में लिखना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये बोर्ड में आ रखा है और ये केस स्टडी में भी आता है, अगर सब्जेक्टिव में नहीं आया तो आप देखो बेटा, सबसे पहले हम अगर फर्स्ट एसएन फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट एसएन की बात करते हैं, इसमें ही देखो आपके पास क्या है, सिंपल सा x माइनस एन तक का टर्म। अच्छा एक चीज यहाँ पे मैं तुम लोगों को एक चीज बता देती हूँ बेटा, देखो यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कितने नंबर ऑफ टर्म है यहाँ पर, बट इन केस अगर आपको डाउट होता है कि मैम इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है, तो एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला। अब इसमें क्या करोगे, देखो तुम्हें nth टर्म x माइनस वन दे रखा है ना, और तुम्हें a कितना दे रखा है 1, और ये n माइनस वन है, और d हमारे पास कितना है 1। अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो x माइनस वन प्लस x माइनस वन माइनस वन आ जाएगा, और ये हो गया हमारे पास n माइनस वन। अब देखो ये क्या हुआ, x माइनस टू इज इक्वल्स टू n माइनस वन, वन इधर आएगा तो x माइनस वन अगेन आ गया, तो n की वैल्यू आपके पास x माइनस वन, जो कि ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल आपको समझ आ रही थी। अब पहले एसएन फाइंड आउट करती हूँ, तो एसएन क्या लिखूंगी, ये फर्स्ट एसएन है n/2, अब n कितना है हमारे पास x माइनस वन बाई टू, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2a, मतलब 1 प्लस x माइनस वन माइनस एन इंटू डी कितना है 1, और यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस वन अपॉन टू, एंड ब्रैकेट में ये हो जाएगा 2 प्लस x माइनस टू, ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया बेटा x ब्रैकेट में x माइनस वन अपॉन टू, दिस इज फर्स्ट एसएन, ये आपके पास फर्स्ट एसएन आ गया। अब इसी को हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो दूसरे वाले एसएन की वैल्यू बतानी, तो देखो दूसरे वाला जो एसएन है, एक सेकेंड सॉरी, जो दूसरा वाला एसएन है वो हमारे पास एपी कैसे है, x प्लस वन से लेके 49 तक। अब अगर आपको इसके टर्म बताने हैं कि इसमें कितने टर्म होंगे तो कैसे करेंगे, तो अब देखो इसके बाद क्या आएगा, x प्लस टू आएगा, x प्लस थ्री आएगा, ऐसे 49 होगा। देखो ए एन इज इक्वल्स टू अगर मैं बोलूँ तो क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अभी बताया मैंने, ए एन कितना है तुम्हारे पास 49 है, और a कितना आपको दे रखा है x प्लस वन, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 1, क्योंकि कंसेक्यूटिव है। 49 माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू एन माइनस वन आ जाएगा। अब आप यहाँ पर एक बात बताओ मुझे, ये कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 48 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा आपके पास n माइनस वन, और ये वन इधर आके आपका प्लस हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया, देखो 49 माइनस एक्स हो गया टर्म, n की वैल्यू आपके पास ये आ गई, क्योंकि ये वन इधर आएगा तो प्लस होगा, ऐड हो जाएगा 49 हो जाएगा, अब ये n की वैल्यू आ गई। तो अगर मैं यहाँ पर फिर से फाइंड आउट करना चाहूँ तो हमें क्या करना है, हम s 49 माइनस एक्स फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे n की जगह 49 माइनस एक्स पुट करो डिवाइडेड विद 2 a क्या है हमारे पास, a हमारे पास था बेटा x प्लस वन, और प्लस हमारे पास यहाँ पर, अच्छा तुम यहाँ पर a प्लस ए एन का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, वैसे वो पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप यूज कर सकते थे, यहाँ भी क्योंकि आपको a और an पता, तो यहाँ पर चलो हम यूज कर लेते हैं, अगर मैं पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं यूज करी, पिछले वाले पार्ट में मतलब, सो a प्लस ए एन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 49 माइनस एक्स अपॉन टू करोगे, और a आपको कितना दे रखा है x प्लस वन, और ये आपको 49 दे रखा है an, क्योंकि तो ये कितना हो जाएगा 49 माइनस एक्स बाई टू, एंड दिस इज व्हाट x प्लस 50। अब इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे इसको आपको सॉल्व करना है, मतलब इन दोनों, ये सेकंड वाला है तो ये 49 माइनस एक्स है जो आपके बाद वाले एपीस का सम था, अब इनको हमें इक्वेट करना है बेटा, हमें इन्हें इक्वेट करना है, तो देखते हैं क्या करेंगे, क्योंकि फर्स्ट एपी का जो सम था हमारा x माइनस वन, और जो दूसरी एपी का सम हमारे पास आया 49 माइनस एक्स, इनको इक्वेट करते हैं, एक बारी मैं देख लेती हूँ क्या आया था। सबसे पहले आया था x माइनस वन बाई टू, x माइनस वन बाई टू आपके पास आया, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 49 माइनस एक्स अपॉन टू और x प्लस 50, 49 माइनस एक्स बाई टू, और ये है आपके पास x प्लस 50। अब आप सारे बच्चों को पता है कि आप 2 और 2 आराम से कैंसिल कर सकते हो, एंड ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, यहाँ पर आप अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 49 माइनस एक्स, और फिर ये आपके पास है x प्लस 50, ठीक है, सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई होगा तो 49x
और फिर माइनस एक्स स्क्वायर आया आपके पास, एंड देन और आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये आ गया आपके पास कैरी 4 245 एंड देन माइनस 50x। अब आप इनको सेम साइड पे लेके आ जाओ, ये और ये सब्ट्रैक्ट होके x हो जाएंगे, तो ये हो गया 2x स्क्वायर क्योंकि x इधर आएगा, और माइनस एक्स, अच्छा ये देखो ये और ये सब्ट्रैक्ट होके माइनस एक्स होगा, माइनस एक्स इधर आएगा, तो ये तो सिंपल ही हो गया ना। देखो चलो इधर ऐसे ही कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ, देखो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया माइनस एक्स प्लस 245 हुआ ना, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये x और x कैंसिल हो गया, और ये आपके पास आ गया, अच्छा बेटा रुको इधर जीरो भी था, मैंने जीरो नहीं लगा, मैंने सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 50 था, और ये आपके पास आ गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 2450 आ गया। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल करो 2450 को, ये 2 से कैंसिल होगा तो कितना हुआ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4 और फिर 2 5 1225। अब भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया 1225, तो देख लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1225 किसका होता है, किसका हो जाएगा, आपको अगर चेक करना है तो 1225 का, वैसे मुझे पता है बट मैं आपके लिए कर रही हूँ यहाँ पर, 5 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, मतलब 5, ये आपके पास कितना आया 5 2 जा 10 करा आपने, और फिर हो गया 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 से करो फिर से 5 4 जा 20, 5 9 जा 7 7 7 1, तो किसका पेयर बन गया 35। इट मीन्स दिस इज व्हाट, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 35। अब प्लस माइनस, माइनस तो नंबर होते नहीं है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 35, यानी कि x कौन सी पोजीशन पे 35, तो ये मिस्टर अंकल का जो घर है ना बहुत ही अच्छा, ये कौन सी पोजीशन पे है बेटा, ये 35th नंबर पे है, 35th नंबर पे है, ठीक है। सो यहाँ से हमारे सारे इंपॉर्टेंट PYQs कंप्लीट होते हैं, ठीक है, दिस इज योर आंसर। एंड अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिमेनिंग है, बट इफ यू वांट टू लर्न मोर कॉन्सेप्ट एंड मोर क्वेश्चंस बहुत ही इजी मेथड में, इतना इफेक्टिव लेक्चर, अगर आपको और ऐसे लेक्चर्स चाहिए तो फिर आप कमेंट सेक्शन में आप लिखो यस वी वांट मोर लेक्चर्स, और भी टॉपिक्स पे और भी चैप्टर्स पे आपको चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेटा, इस चैप्टर के ये सारे क्वेश्चंस को पॉज करके नोट डाउन करो, खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करो, और आप देखना आप कितना कॉन्फिडेंट फील करते हो, फिर आप PYQs उठा लो, कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन, आई एम 100% श्योर यू विल बी लाइक आप बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर पाओगे उन सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। सो फॉर टुडे थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, थैंक यू।